Tanvi Dikshit and I am back again in the paradise on earth that is Kashmir, which turns into a winter wonderland during the winter months. As you can see, I'm here right now at the iconic Dal Lake and I'm about to head on a Shikara ride. So in this video, I tell you all the do's and don'ts, everything you need to know when you go on a Shikara ride on the Dal Lake. Let's go. Super fun thing that you can actually do while you're riding on a Shikara is get dressed up in traditional Kashmiri clothes. So as you can see, there's another Shikara next to me where he has all your authentic Kashmiri clothes, jewelries and everything. So I'm just going to quickly hop on to the other Shikara and get pretty in Kashmiri. Let's go. This is my final look. So if you want to look like a Kashmir ki kali floating around on the gorgeous Dal Lake, then definitely come here and dress up. तो भैया ने मुझे actually पहले quote किया था 250 का price, but you can haggle a little. Always haggle a little. So he said yes to do this for 200 rupees, and he's also going to give me a couple of prints. He actually made me do a lot of creative poses, posing with like a bouquet of flowers and a matka and all of that. So I'm actually excited to see those pictures. So definitely do this when you come for a Shikara ride on the Dal Lake. Okay, so while you're floating on the Shikara, you can actually go shopping because you have a lot of these mini shops which are floating around on Shikaras. You have jewelry shops, you have food, fruit, kava sellers, and my favorite, there's a florist. There's actually a floating flower shop right here on the Shikara next to me. What is the price range? ये वाला अगर है तो 150. Okay. So guys, as you can see, there's a floating jewelry shop here and he has a variety of bracelets, neck pieces, rings and all of that. And starting price कितना? 100-150 से starting है इसका? 100-150 से starting है इसका. He has a beautiful selection of rings as well, starting at 150. मैं अभी आ चुकी हूँ in Tampora district. And I'm headed to this store which is known to sell the most authentic quality kesar and a lot more. We'll also try to find out how you can identify high quality kesar as a tourist. So let's go inside Farmer Saffron Company. ये केसर है, ठीक है. केसर बोलो आप, ज़ैफ़रान बोलो, सैफ़रान बोलो. तो केसर की जो कल्टीवेशन है वो पूरे कश्मीर में खाली इस एरिया में होती है. ये जो एरिया है इसका नाम है लेथपोरा पामपोर केसर टाउन से ये माना जाता है पूरे वर्ल्ड में. कोई मशीनरी, कोई फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं होता है, ठीक है. बारिश जितना भी पड़े केसर के लिए बेस्ट है, ठीक है. स्नो भी केसर के लिए बेस्ट रहता है. जिस सीज़न में बारिश या स्नो ज़्यादा होगा उस सीज़न में केसर की कल्टीवेशन ज़्यादा निकलती है, ठीक है. सूखा पड़ने पे इसकी कल्टीवेशन नहीं होती है, ठीक है. पूरी वर्ल्ड की बात करेंगे तो 3 जगह केसर निकलता है, स्पेन, ईरान और इंडिया में यानी कि कश्मीर में. पूरे वर्ल्ड में फेमस जो केसर है वो इंडिया का है यानी कश्मीर का है. इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ. ये कहवा है, ठीक है. जैसे हम गिनती में 10-11 बोलते हैं, कश्मीरी में 11 को काह बोला जाता है. और जो चीज़ अच्छी लगती है उसको वाह, इसलिए इसका नाम पड़ गया कहवा. यानी इसमें 11 मसाले पड़ते हैं तब जाके ये चीज़ बनती है. यहाँ पे आपको 300 रुपीज़ पर ग्राम मिलेगा. यहाँ पे क्वालिटी वाइज आपको केसर नहीं मिलेगा, एक ही क्वालिटी है. एक तो ये जो है केसर है इसको मोंगरा बोलते हैं. ये प्रोसेस्ड होता है. केसर हमेशा खाने में स्वीट या सॉल्टी नहीं आना चाहिए, ठीक है. अपना कलर ये हमेशा येलोइश देता है. The mark of the most authentic good quality kesar is that when you taste it, it should be bitter on your tongue. केसर 9,000 10,000. This is ये आपको 8,000 मिलेगा.
Oh wow, what the fragrance. Oh my god. इससे छोटा भी मिलेगा, आप टेंशन मत लो। आपको 1 मंथ का भी मिलेगा, 2 मंथ का भी मिलेगा, ये 3 मंथ का। I'm definitely picking some up for myself. I don't think I've ever seen आप रेट चेक saffron करोगे ना of सर, this quality वहाँ पे before. आपको दूसरा यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट है वो है शिलाजीत। 80 to 15,000 ऊपर होता है ये पहाड़ियों में, रॉ फॉर्म में। इसको फिर प्रोसेस किया जाता है। इसको प्रोसेस करने में करीब 36 आवर्स लगते हैं, तब जाके शिलाजीत तैयार होती है। फिर मार्केट में इसको बेचते हैं। शिलाजीत जो है, अगर किसी को बैक पेन रहता है, जॉइंट्स पेन रहता है, नी पेन रहता है, इसमें करीब 32 हेल्थ बेनिफिट्स है। ये नहीं कोई भी बंदा खा सकता है, नॉर्मल बंदा भी खा सकता है। अगर किसी को प्रॉब्लम्स है वो खा सकता है। खाली 3 बंदे नहीं खा सकते। एक तो जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो नहीं खा सकता है, और 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं खा सकते। तीसरी जो है वो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो जंगल में हर्ब्स होते हैं ना, ये जो जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो जब डिकम्पोज होती है ना, तो रॉक्स जो है वो अपने अंदर उसको ऑब्जर्व करता है। Okay. इसीलिए ये रॉ फॉर्म में होता है। फिर इसको प्रोसेस किया जाता है। इसको उबालना पड़ता है पानी में करीब 36 आवर्स तक, तब जाके ये प्योर शिलाजीत बनता है। केसर का यहाँ पे मतलब कश्मीर में किस किस चीज में यूज, जैसे खाने में जाता है, कहवा यहाँ में पे जाता हम है? ज़्यादातर दूध में इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो आपने अभी कहवा पिया उसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या अगर हमें हलवा बनाना हो तो हलवे में हम डाल के बनाते हैं। और जो यहाँ पे जो खेती होती है, मतलब केसर का प्रोडक्शन होता है, तो अगर कोई टूरिस्ट वो देखने आना चाहे, जैसे हार्वेस्टिंग वगैरह जी, होती जी। है, तो कौन सा टाइम? 20 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक, सिर्फ 1 महीने के दौरान? पूरे साल में 1 महीना। ठीक है, 4 सीज़न रहते हैं कश्मीर में। एक तो अभी टूलिप गार्डन मार्च में शुरू हो जाएगा, एक सीज़न ये होता है। दूसरा होता है एप्पल जब होते हैं, ठीक है। फिर आता है ये केसर सीज़न, फिर आता है विंटर यानी कि बर्फ़ सीज़न। ये 4 सीज़न आते हैं, जहाँ जिस सीज़न में यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं वो होता है केसर का सीज़न। उस टाइम आपको पूरा, अभी आपको कहाँ जाना है? अभी गुलमर्ग। तो अभी आपने ये साइड नहीं देखा है। यहाँ से 1 किलोमीटर आप जब जाओगे, इस साइड पे भी आपको खेती मिलेगी, इस साइड पे भी वो केसर के खेत है। ठीक है, बाहर आप जो गमले में देख रहे हो, ये जो ग्रीन ग्रास है, ये केसर के बीज लगे हुए हैं। ठीक है, हम लगा सकते हैं बीज को, तो 10 साल के बाद हमें निकालना पड़ता है। 10 साल के बाद? 10 साल के बाद इसमें ऐसे ही बेबी सीड्स आएंगे, फिर वो अलग करके दूसरी जगह हम लगा सकते हैं। लेकिन केसर को पहली बार अगर लगाना है तो 10 साल एक ही जगह रहता है। ठीक है, इसकी जो खुदाई होती है वो पूरा हैंड प्रोसेस्ड होता है। साल में 3 बार इसकी खुदाई होती है, वो भी हाथों से। कोई मशीनरी, कोई फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं होता है। या अगर बारिश नहीं पड़े, फिर हम डायरेक्ट पानी इसमें डालेंगे, ज़्यादा पानी, तो ये पूरा बीज खराब हो जाएगा। बारिश जितना भी पड़े कुछ नहीं होता। ये पूरा जो केसर है वो नेचुरल पे डिपेंड है, एकदम नेचुरल ये होता है। So apart from saffron, Kashmir is also well known for its high quality dry fruits and nuts, of course. So यहाँ पे you can see there's a variety of dry fruits and nuts. There are blueberries, cranberries, there are cherries, apricots, raisins, walnuts and almonds. Especially the walnuts and almonds in Kashmir are supposed to be of the highest quality. यहाँ पे एक almond का type मिलता है जिसको बोलते हैं मामरा बादाम. Now most of the almonds that you'll find in your bigger cities, they are dried out and they don't have a lot of natural almond oil. But these mamra almonds, if you actually squeeze them with your fingers, you actually see oil coming out of them. This is the trademark of highest quality almonds and they just taste so flavorful and fabulous. I'm definitely taking some mamra almonds back with me, as I always do whenever I come to Kashmir. So guys, one really unique thing that you should not miss out on when you're in Kashmir is a visit to the Bat Village.
तो मैं अभी आ चुकी हूँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में टू दिस टाइनी विलेज कॉल्ड बैट विलेज। तो बेसिकली कश्मीर इज रियली पॉपुलर फॉर इट्स हाईएस्ट क्वालिटी बैट्स। यहाँ से ऑल ओवर इंडिया बैट्स का सप्लाई होता है। बैट्स आर सेंट फ्रॉम हियर टू मुंबई, फ्रॉम वेयर देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया, एंड द स्टेट इज एक्चुअली known to produce the highest quality Kashmir willow bats. तो आई एम प्रिटी श्योर आप में से जो भी क्रिकेट फैंस हो गए, यू गाइस हैव डेफिनेटली हर्ड ऑफ दीज बैट्स। व्हेनेवर यू आर हियर, इफ यू वांट टू हैव एन ऑफ बीट एक्सपीरियंस, डेफिनेटली स्टॉप बाय द बैट विलेज। यहाँ पे काफ़ी सारे वर्कशॉप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई एम एट दिस वर्कशॉप राइट नाउ। मोहम्मद भैया मुझे दिखा रहे हैं, ही इज जस्ट शोइंग मी अराउंड द वर्कशॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सेटअप है, एवरीथिंग फ्रॉम कटिंग द वुड टू फिनिशिंग द बैट्स, एवरीथिंग हैपन्स इन दीज फैक्ट्रीज राइट हियर। सो कम लेट्स टेक अ टूर ऑफ द फैक्ट्री। तो अभी मेरे साथ यहाँ पर है मोहम्मद भैया। भैया आप थोड़ा सा ये बैट फैक्ट्री के बारे में बता सकते हो, कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है और क्या कश्मीर के बैट्स की खासियत क्या है? बिल्कुल मैडम, सही बात है। जो यहाँ पे कश्मीर विलो बैट बनता है, ये भी विलो ट्रेड का बनता है। पहले इसको यहाँ पे काटिंग होता है बैट का यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे हैंडल फिक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? हैंडल फिक्स होता है। जी मैडम। फिर उसके बाद यहाँ पे शेप होता है, यहाँ पे शेप होता है मैडम। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग होता है मैडम का यहाँ पे। अच्छा। और जो वो हैंडल होता है वो यहाँ पे गोल होता है हैंडल। अच्छा जी मैडम। जो दूसरा होता है लेदर बॉल, वो यहाँ पे होता है, उसको स्ट्रोक बनता है यहाँ पे। आइए देख लो आराम से, कोई बात नहीं। यहाँ पे लेदर बॉल का स्ट्रोक बनता है। पहले इसको पानी लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद ये चलता है। इसको 4-5 राउंड निकाल लेती है बाहर। यहाँ से सप्लाई जाता है बाहर, यहाँ ही बनता है। यहाँ फैक्ट्री लगे हुए, सब फैक्ट्री लगे हुए हैं, यहाँ ही बनता है, यहाँ से सप्लाई जाता है बाहर। और ये खासियत क्या है, मतलब कश्मीर में ही ये बैट्स इतने फेमस क्यों हैं? यहाँ बहुत अच्छा लकड़ी है, इससे बनता है, बढ़िया बैट है मैडम। कौन सी लकड़ी है? विलो कश्मीर विलो, कश्मीरी विलो का बनता है ये बैट्स। ओके। और आपका सब स्टॉक यहाँ से मुंबई तक जाता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन? बिल्कुल सही मैडम जी। और ये बैट्स की अगर यहाँ पे हम देखें तो कॉस्टिंग क्या रहेगी आपको? यहाँ से 350 से स्टार्ट है मैडम। 350 मैडम जी मैडम। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। ओके मैडम। On our way to Pahalgam, जा रहे हैं to the secret destination and everybody is so excited to know what this destination is. हम लोग बस के टॉप पे आके बैठ गए। As you can see, guys, how excited are we? So here we are. We have just arrived at the secret location. मुझे अभी भी पता नहीं है exactly क्या है, but all I could figure out from the board outside was that we are heading to a waterfall. So this is our pathway. Honestly, my first time in my whole life I'm going to a waterfall while walking on snow. Like, this is crazy. So let's see which waterfall we're going to. Welcome to Aharbal Waterfalls. What an absolutely gorgeous, stunning sight. Kashmir exploration has almost come to an end. So I'm spending my very last night here in Kashmir by staying in a gorgeous houseboat. This entire journey has been nothing short of amazing. If you enjoyed watching this video, leave a comment, let me know what was your favorite part of it, and I will be back with more such content. This is your travel companion Tanvi Dixit signing off for now. Until next time, don't forget, like, share, subscribe.